بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے سائے دور دور تک پھیل چکے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب تھا۔ میں نے مال مویشی اندر کھینچے، کمروں میں بند کیے، اچھی طرح تالے لگائے اور پھر گھر کی طرف جانے والے راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ پورا راستہ کچا تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی انہی کچے راستوں پر خود کو سفر کرتے ہوئے پایا تھا۔ میں تیز تیز قدموں کے ساتھ گھر کی طرف چل رہا تھا۔ حالانکہ ان راستوں کے بارے میں شروع سے ہی مشہور تھا کہ ان راستوں پہ جنات کا بسیرا ہے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے کہ آج تک میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اماں کے مطابق پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں ابھی بھی اپنی ہی موج مستی میں بالٹی کو گھماتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں دودھ کی بالٹی بھی تھی جس میں دودھ ڈیرے سے گھر کی طرف لے جا رہا تھا۔ کچھ دودھ ہم گھر میں رکھ لیتے تھے، باقی کا بیچ دیا کرتے تھے، کیونکہ گھر کی گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ ڈیرے سے گھر تک کا سفر تقریباً 2 کلومیٹر تھا، جسے میں بہت آسانی سے 10 منٹ میں طے کر لیا کرتا تھا۔ ابھی میں کچھ فاصلے پہ ہی تھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا اور عجیب و غریب سا کتا میرے سامنے آ گیا۔ اس کے زور زور سے بھونکنے کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن بہت عجیب ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی عام کتا نہیں تھا، بلکہ بہت ہی کوئی خوفناک قسم کا کتا تھا۔ میں بہت گھبرا گیا، لیکن ہمت کر کے چلتا گیا۔ کتا ایک دم سے دوسری طرف مڑ گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور پھر گھر کی طرف تیز قدموں کے ساتھ چلنے لگا۔ جیسے ہی گھر پہنچا تو دیکھا کہ سارے گھر والے بہت پریشان تھے۔ ابا کی چارپائی کے ارد گرد دائرہ بنا کر کھڑے ہوئے تھے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں بھاگ کر ابا کے پاس گیا۔ ان کی سانس بڑی مشکل سے آ رہی تھی۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ چارپائی پہ تھے، ہر طرح کا علاج کروا لیا تھا، لیکن بیماری سمجھ سے باہر تھی۔ سارے گھر والے مسلسل پریشانی کے عالم میں رہتے تھے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلانے لگے اور اشاروں سے ہی سمجھایا کہ جو ڈیرے کے ساتھ زمین ہے اس کے ایک ٹکڑے پر جو چھوٹا سا گھر جو بنا ہوا ہے وہ ہمارا ہے، لیکن تمہارے تایا نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اگر کبھی ہو سکے تو وہ قبضہ ان سے چھڑا لینا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی کی سانسیں ساتھ چھوڑ جائیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی۔ ماں باپ میں سے کوئی بھی چلا جائے تو زندگی بہت اجیرن ہو جاتی ہے، لیکن میری زندگی اس قدر مشکل ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابا کے پاس کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اماں کے بلانے پہ میں کچن میں چلا گیا۔ وہاں میری 2 چھوٹی بہنیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، وہ بھی افسردگی کے عالم میں تھیں۔ ابا کی طبیعت ہی کچھ ایسے ہو رہی تھی، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ میں نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے ان کو تسلی دی اور کھانا کھانے کا کہا۔ ہمارا یہ گھر اچھا بنا ہوا تھا، پکا تھا۔ ابا نے اپنی تندرستی کے دنوں میں اسے بنوا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بری طرح سے دھڑکتا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں ابا کے پاس ہی چارپائی بچھا کر سو گیا۔ رات کے دوسرے پہر اماں اور بہنوں کے رونے کی آوازوں سے گھبرا کر میں ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور اپنے آس پاس سب کو روتے ہوئے دیکھ کر گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ ابا کے سر تک سفید چادر لپٹی ہوئی تھی اور اماں زاروں قطار رونے میں مصروف تھیں۔ میں نے چھوٹی بہنوں کو بھی دیکھا، وہ بھی بہت رو رہی تھیں۔ گھڑی پہ نظر ڈالی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میرے آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اماں میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ روتے روتے صبح ہو گئی۔ صبح تک سارے رشتہ دار آ چکے تھے۔ صبح کے 10 بجے ابا کا جنازہ تھا۔ شام تک اماں روتی رہیں اور مہمان آتے رہے۔ تایا جی رات گئے تک کچھ کاغذات لے کر آ گئے جس پر واضح انداز میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر جس میں ہم رہتے ہیں یہ تایا جی کا ہے، اور ہمارے لیے ڈیرے کے ساتھ جو بالکل کچا گھر ہے وہی ہمارا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ہوش کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، میں نے اس پہ بہت محنت کی ہے، اس لیے میرا حق زیادہ بنتا ہے۔ تم لوگ کل تک یہ گھر خالی کر دو، بہتر ہوگا، ورنہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اماں جانتی تھی کہ تایا بہت پیسے والے ہیں، اگر ہم لوگ ان کی بات نہیں مانتے تو وہ ہمیں بہت نقصان پہنچا سکتے تھے، اسی لیے ہم لوگوں نے ان کو مزید موقع دیے بغیر اگلے دن گھر خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اماں یہ فیصلہ کر تو چکی تھی لیکن بے حد پریشان تھی، لیکن مجھے کہنے لگی ہارون تم فکر مت کرو، سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔ ویسے بھی کچھ عرصہ بعد دونوں بیٹیوں کی شادی بھی کر دینی ہے، اسی لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن ہم لوگ اپنا مختصر سا سامان لے کر ڈیرے کے پار چلے گئے۔ گھر کی حالت بہت ہی خراب تھی، مکمل طور پر کچا مکان تھا جس میں مٹی بھی مسلسل گر رہی تھی، لیکن لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے ہم لوگوں نے صبر سے کام لیا۔ سکیہ اور سمینہ میری دونوں بہنیں ہیں جن کی منگنی
कि घर हो गई थी, कुछ अरसा में शादी थी, हमारी तरफ से मुकम्मल तैयारी थी। लेकिन अब अब्बा की वफ़ात के बाद कुछ अरसा तक इंतज़ार करना लाजिम था। मैं अलग सुबह ही डेरे की तरफ निकल जाया करता था। जिस इलाके में हम लोग रहते थे उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। ताया जी की निस्बत हमारी ज़मीन बस ना होने के बराबर थी। फिर उनके 3 जवान जहान बेटे भी हर वक्त ज़मीन को बढ़ाने में लगे रहते थे। वो पढ़े लिखे थे, नित नए तरीकों से ज़मीन की खुशहाली की फ़िक्र करते रहते थे, और मैं इकलौता होने की वजह से, घर की जिम्मेदारियां उठाने की वजह से स्कूल को खैर बात कह चुका था। इसलिए तालीमी कमी मेरी तरक्की की राह में रुकावट बनती जा रही थी। लेकिन अम्मा की दी हुई हिम्मत के साथ मैं मजीद आगे बढ़ने के तरीके सोचता रहता था। जहाँ पे हमारा अब कच्चा घर था, वहाँ से ताया जी की वसी और लहलहाती फसलें मुझे अक्सर परेशानी में मुब्तला कर दिया करती थी। लेकिन मैं फिर भी बहुत हिम्मत से काम ले रहा था। एक दिन मैं डेरे पर काम करने के बाद फारिग होकर बैठा ही था। चारपाई कुएं के पास ही बिछाई थी ताकि कुछ अच्छी और ठंडी हवा आ सके। असर का वक्त बिल्कुल करीब था। कुछ फासले पे खड़ी एक भैंस और एक गाय मजे से चारा खाने में मसरूफ थी। मैं उन्हें बड़ी मोहब्बत से देख रहा था कि अचानक ही खड़े और बंद कुएं में से पानी गिरने की आवाजें आने लगीं, और आवाजें इतनी वाज़ेह थीं कि मैं कुएं की तरफ देखने पर मजबूर हो गया। एक दो दफा देखने पर भी मुझे कुछ समझ ना आई, लेकिन पानी गिर रहा था, और पानी बिल्कुल ऐसे ही आ रहा था जैसे कुआं किसी जानवर के खींचने से चल रहा हो। लेकिन कोई भी जानवर नहीं था उसके आगे। मैं बहुत परेशान हो रहा था। लेकिन पानी कुछ देर गिरने के बाद एकदम से आना बंद हो गया। मैं हिम्मत करके उठा और कुएं के करीब जाकर उसके अंदर झांकने लगा। लेकिन अंदर तो बिल्कुल वैसे ही साफ शफाफ पानी के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं हैरान खड़ा सोच रहा था, लेकिन कुछ समझ में ना आने की वजह से वापस गाय के पास चला गया। वो अब चारा खाने के बाद जुगाली करने में मसरूफ थी। भैंस भी जमीन पर बैठ चुकी थी। मैं एक चक्कर खेतों में लगाने के बाद गाय का दूध धोने लगा। बाल्टी में दूध डालकर मैं घर की तरफ चल पड़ा। अब तो घर का रास्ता भी मुकम्मल तौर पर सिमट चुका था। काले स्याह बादल चारों तरफ फैले हुए थे। लगता है आज बहुत जोर से बारिश होगी। अम्मा नमाज पढ़कर लंबी दुआएं मांगने की आदी थी, इसीलिए मैं उनके पास ही बैठ गया। मुझे घर आते आते मगरिब की अजानें हो गई थी। सकीना खाना लेकर आ गई। हल्की हल्की बारिश बरसने लगी, और मुझे हमा वक्त ये फिक्र सता रही थी कि अगर बारिश तेज हो गई तो हमारे कच्चे मकान का क्या होगा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। बहन अम्मा के लिए भी खाना ले आई। अभी अम्मा ने खाना शुरू किया था कि कच्ची छत बुरी तरह से टपकने लगी थी। मेरा दिल दहल कर रह गया, लेकिन मैं बस क्या कर सकता था। अम्मा भी बहुत परेशान थी। ये घर बहुत छोटा नहीं था, कमरे और भी थे, लेकिन अम्मा ने इसकी कच्ची छत और दीवारों की वजह से सकीना और समीना के जहेज की सारी चीजें पहले वाले घर के साथ जो हमसाए थे वहां रख दी थी ताकि ना हो। मेरे पास छोटा सा मोबाइल था। उसकी घंटी बजने लगी तो मैंने स्क्रीन पर देखा खाला का नंबर जगमगा रहा था। मैंने सलाम करने के बाद मोबाइल अम्मा को दे दिया। खाला कल या परसों तक बहनों की तारीख लेने आ रही थी। अम्मा को कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि वो तो खुद ये चाह रही थी कि ये शादियां जल्द अज जल्द हो जाएं, ताकि वो अपने फराइज से फारिग होकर इस कच्चे मकान का कुछ कर सकें। मैं भी जानता था कि अब्बा भले बहुत बीमार रहे हैं, लेकिन वो अपनी सेहतयाबी के दिनों में बहुत सख्त मेहनती हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने बहुत सारे पैसे जमा करके अम्मा को दिए हुए थे, ताकि अम्मा को बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। बस हम लोग एक ही कमरे में अब सो जाते थे, लेकिन पूरी रात की बारिश की वजह से छत थोड़े थोड़े वक्फे के साथ टपक रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि हमारी ज़मीन भी बिल्कुल थोड़ी सी है और महज 2 जानवरों से गुजारा हरगिज़ बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना मैं शहर जाकर कोई नौकरी तलाश कर लूं। लेकिन अम्मा नहीं मानी और कहने लगी कि यहाँ पे हमारा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है, इसलिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। छत टपकने की वजह से कोई भी ठीक तरह से रात भर सो नहीं सका। सुबह फजर की नमाज पढ़ने से पहले ही मुझे खेतों में जाना होता था। सर्दी शुरू होने वाली थी, इसीलिए शाम जल्दी और सुबह बहुत देर से होती थी। मैं जैसे ही खेतों की तरफ बढ़ा तो ये देखकर हैरत ज़दा हो गया कि सारे खेत पानी से ऊपर तक भर गए हैं। घर में छत टपकने से ये अंदाज़ा तो हो ही गया था कि बारिश बहुत तेज़ है, लेकिन यहाँ आकर तो मैं हैरत ज़दा हो गया कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है। खेतों में पानी की वजह से कुआं चलाने की शायद अगले 3 दिन तक ज़रूरत ना पड़े। मैं खेतों में मिर्चों के पौधे देखने में मगन था कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कुआं ज़ोर ज़ोर से खींचने में मसरूफ़ हो। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कुएं के करीब गया, लेकिन वो वाकई चलने के बाद अब रुकने के बिल्कुल करीब था। या खुदाया, सब कुछ क्या है? कुआं कैसे खुद ब खुद चल रहा है?
मैं पुरसोच अंदाज में बैठा हुआ था कि फजर की अजानें सुनाई दी। मैंने उठकर वुजू किया और नमाज पढ़ने के लिए ईंट गारे की बनी हुई छोटी सी मस्जिद में चला गया ताकि नमाज अदा कर सकूं। नमाज पढ़ने के बाद मैं गाय का दूध धोने के लिए बाल्टी लेकर बैठ गया। आज दूध पहले से कुछ कम था। खैर, मैं दूध वाली बाल्टी उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। अम्मा जाए नमाज से उठकर कुरान शरीफ पढ़ने में मसरूफ थी। नाश्ता बन चुका था। मैंने नाश्ता करने के बाद अम्मा की बताई हुई चीजें लाने के लिए शहर की तरफ सफर शुरू कर दिया। मेरे पास एक पुरानी सी बाइक थी, मैं उसी पे आता जाता था। शहर हमारे गांव से 1 घंटे की मुसाफत पे था, इसीलिए मैं जल्द ही वहां पहुंच गया। सारी चीजें लेकर अभी घर की तरफ आ ही रहा था कि रास्ते में मेरी बाइक के सामने एक लड़की आन लगी। वो सामने आते ही गिर पड़ी और उसके सर से खून निकलने लग गया। मैं बहुत हैरत ज़दा हो गया कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि टक्कर तो इतनी जोर से हुई ही नहीं थी। फिर ये सब कुछ क्या है? खैर, मैं उस लड़की को लेकर एक हॉस्पिटल में गया। उसके साथ कोई भी नहीं था। मैंने उसकी बैंडेज वगैरह करवाई और फिर उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए अता पता मालूम करने लगा। मैं उसके बताए हुए एड्रेस पर उसे उसके घर तक छोड़कर जाने लगा। उसके घर में सभी थे, लेकिन मुझे हैरत हुई कि कोई एक भी ना तो मुझे रुकने के लिए कह रहा था और ना ही किसी ने मुझे एक दफ़ा भी शुक्रिया कहा था। इसीलिए मैं कुछ हैरान था, लेकिन फिर ये सोचते हुए कि शायद शहरों में यही रिवाज होते हैं, इसलिए मैं चुपचाप घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। शाम होने को थी। मेरे मोबाइल पे बहुत सारी कॉल्स भी आई हुई थी। अम्मा लोगों के पास तो मोबाइल नहीं था, लेकिन वो मेरे दोस्त के घर से कॉल्स कर रही थी। जाहिर है कि सभी परेशान होंगे। मैंने रास्ते में ही कॉल बैक की और उनको बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर आकर सब कुछ बताता हूँ। 1 घंटे का सफ़र मैंने 2 घंटे में तय किया, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ते बहुत ख़राब थे। जब मैं घर पहुंचा तो शुक्र अदा किया, क्योंकि खाला नहीं आई थी। उनके ससुराल में कोई इमरजेंसी हो गई थी, इसलिए अब वो कल आएगी। कुछ देर के बाद मैंने अम्मा को सारी बात बताई। वो तो सुनते ही परेशान हो गई कि कैसे मैं एक अजनबी फैमिली के घर चला गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैंने वहां से कुछ पिया नहीं है तो उन्हें कुछ इत्मीनान हो गया। कुछ देर के बाद मैं डेरे पर चला गया, जहां पर सुबह से जानवर भूखे प्यासे थे। उन्हें खुराक वगैरह दी और फिर बाकी का वक्त उनके साथ ही गुजारा। रात के वक्त घर आ गया। आज भी मौसम बारिश वाला हो रहा था, लेकिन बारिश नहीं हुई। हमने गोया सुकून का सांस लिया। अगले दिन खाला घर आ गईं। बड़े खुशगवार माहौल में बहनों की शादी की तारीख तय हो गई थी। खाला भी बेवा खातून थी, लेकिन उनके 3 बेटे ही थे जो सख्त मेहनती वाक़या हुए थे। यकीनन वो मेरी बहनों को बहुत खुश रखते। शाम तक वो लोग चले गए। खाला के साथ उनके ससुराल से कुछ लोग आए हुए थे। ज़्यादा लंबी तारीख नहीं दी थी, 15 दिन का वक्फा था। मैं खुद भी यही चाहता था कि ये काम जल्दी से निहायत खुश असलूबी से सरअंजाम पा जाए। खाला लोगों के जाने के बाद ताया जी अपने घर वालों के साथ आ गए। उन्हें लगा कि शायद हम उनके बिना ही सारे फैसले कर रहे हैं। वो बहुत गुस्से में थे और आते ही सब पर बरसने लग गए। ताई जान का गुस्सा सबसे आगे था। वो तो बस बोले ही जा रही थी और उनके बेटे भी कम शोर नहीं कर रहे थे। हम सब इस अचानक अफ्ताद के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसीलिए पहले पहल तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जब कुछ समझ आई तो अम्मा ने बड़ी मोहब्बत से ताईजान का बाजू पकड़कर उन्हें अपने पास ही बिठा लिया और समीना भाग कर गई और पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद वो कुछ नॉर्मल हुई। सकीना खाने पीने की चीज़ें ले आई। ताई अम्मा को चाय दी। वो पीना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन सबकी मिन्नत समाजत पर चाय का कप पकड़ ही लिया। बाकी सब लोग भी बड़ी मुश्किलात से सबके बार बार कहने पर चाय पीने लगे थे। सऊद सबसे बड़ा बेटा है। वो बहुत गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन मैंने देखने से एतराज़ ही किया। बहन जी, हम कोई बच्चों के दुश्मन थोड़ी हैं जो उनसे आप हमें दूर कर रही हैं। ताया जी भरपूर किस्म के गिले शिकवे करने में मसरूफ थे। मैं बहुत सब्र से सब कुछ सुन रहा था, इसलिए कुछ नहीं बोला। ताई जान बिल्कुल भी चुप नहीं कर रही थी, बार बार बोलती जा रही थी। उनके जहन को अभी तक सुकून नहीं आ रहा था, इसलिए वो अम्मा के साथ बहुत गुस्से से बोलने लगी। वो हद से बढ़ने लगी, बुरा भला कहने लगी, लेकिन अम्मा सब कुछ सहती रही। लेकिन जब बात सकीना और समीना पे आई तो फिर अम्मा बिल्कुल भी भूल गई कि वो लोग हमारे यहाँ मेहमान हैं या वो उम्र में बड़े हैं। जिंदगी में पहली दफ़ा ऊंची आवाज़ में ताई को चुप करवाने की कोशिश की। दफ़ा तो ताई भी घबरा गई, लेकिन उन्हें कहाँ चुप रहना अच्छा लगता था, इसीलिए पहले से भी कहीं ज़्यादा भड़क कर बोलने लगी कि अचानक ही उनकी गर्दन में शदीद किस्म का तनाव आ गया। उनकी गर्दन अकड़ने लगी, बिल्कुल किसी सरिया की मानिंद, और फिर तेज तेज घूमने लगी। हम सब उनकी यह हालत देखकर बुरी तरह से घबरा गए थे।
साथ उनके छोटे बेटे जिसकी उम्र 18 साल थी वो जल्दी से घर से बाहर निकल गया, गाड़ी स्टार्ट की और तेज तेज आवाजें देने लगा कि अम्मी को जल्दी गाड़ी तक लेकर आओ। मैं भी आगे बढ़कर ताई को एक हाथ से सहारा देते हुए साथ चलने लगा कि ताया ने सख्ती से मना कर दिया। मैं वहीं पे ही रुक गया। उनकी गरजदार आवाज ने मुझे वहीं पे ही रुके रहने का कहा। अम्मा ने आंख से इशारा करके मुझे वहीं पे ही रोक दिया। मुझे ताई की सेहत की फिक्र होने लगी थी, लेकिन मैं उस लम्हे उनके लिए दुआ के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता था। वो लोग बोलते बोलते घर से निकल चुके थे। हम लोग अपना सर पकड़कर बैठ गए कि ये बैठे बिठाए कौन सी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ताया जी अपनी फैमिली के बारे में बहुत ही ज़्यादा हसास थे। वो लोग अस्पताल पहुंच चुके थे। मैंने ताया के बड़े बेटे साउद को कॉल करके पूछा, लेकिन उसने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। अम्मा ने मुझे बार बार कॉल करने से मना कर दिया। मैं इस सारे तमाशे से कुछ परेशान था। अम्मा कहने लगी कि बादल बहुत गहरे हैं, तुम जानवरों को अंदर कमरे में बांध आओ, बाकी सब कुछ सुबह देखेंगे कि क्या करना है। मैं डेरे की जानिब चल पड़ा। आसमान पे बादल बहुत गहरे होने की वजह से चांद कभी छुप जाता, कभी बादलों से बाहर निकल आता। उसी आंख मचोली में मैं डेरे पर पहुंच गया। मुझे लगा जैसे कोई कोई बूंद गिर रही हो। मैं बारिश होने से पहले पहले घर पहुंचना चाहता था। जानवरों को कमरे में करने के बाद बचा हुआ चारा भी कमरे में कर दिया और फिर मैं तेजी से घर की तरफ जाने लगा कि अचानक ही कुआं चलने की हल्की सी आवाज आने लगी। आवाज भी ऐसी थी कि जैसे कोई बहुत जोर लगाकर कुएं को चलाने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल पहले ही ताई जी की वजह से बहुत घबराया हुआ था। मजीद किसी घबराहट का शिकार होने से बेहतर यही था कि मैं पीछे मुड़कर ना ही देखूं। लेकिन मेरे इग्नोर करने पर भी बड़ी ही खूबसूरत पायल की आवाज मेरी समातों से टकराने लगी और कुएं में से पानी किसी फव्वारे की मानिंद आने लगा। मैंने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैर जमीन में ही गड़ गए, क्योंकि वहां का मंजर ही कुछ ऐसा था। एक निहायत खूबसूरत लड़की उसी कुएं पर बैठी कपड़े धोने में मसरूफ थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी वो धीमे अंदाज में मुस्कुरा रही थी और शायद इशारों से मुझे अपनी तरफ भी बुला रही थी। लेकिन मेरे पैर चलने की कोशिश करते तो मैं वहां तक पहुंच सकता ना। पांव तो वहीं जमीन में ही गड़ गए थे। अचानक ही उस कुएं में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लग गईं, जैसे कुछ शोर हो। वो लड़की मेरी आंखों के सामने ही उस कुएं में बेधड़क कूद गई। मुझे लगा शायद उस लड़की ने खुदकुशी कर ली हो। मैं बहुत बेचैनी से उसे देखने के लिए कुएं के मुंडेर तक गया, लेकिन जैसे ही अंदर झांका तो मेरा सर चकराने लगा, क्योंकि कुएं के अंदर बेशुमार वैसी लड़कियां थीं जो कुएं की तह में बैठकर कपड़े धोने में मगन थीं। जैसे ही उन सब की नजर मुझ पर पड़ी वो सारी मेरी तरफ लपकी। वो कुएं के ऊपर तक आ गईं। मुझे लगा कि ये मेरी आखिरी रात है, इसीलिए मैंने आंखें मूंद ली। काफी देर तक मैं इसी हालत में रहा। जब होश आई तो मैं अपने कमरे में चारपाई पे पड़ा बुखार में तप रहा था। थोड़ी थोड़ी आंखें खुली, इधर उधर देखा तो अम्मा भागती हुई आई और मुझे देखकर शुक्राने के नवाफिल अदा करने लगी। उनके मुताबिक मैं 3 दिन के बाद होश में आया हूँ। मैं शदीद बुखार में मुब्तला था और फिर डेरे ही पर बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था। वहां से मेरा दोस्त उसामा मुझे उठा कर लाया था। मैं बहुत परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा। उसामा के अलावा उसकी अम्मी भी वहीं पर मौजूद थी। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया। वैसे भी मेरे सर में अब तक शदीद दर्द हो रही थी। उसामा ने ही मेरी गैर मौजूदगी में डेरे की देखभाल की थी। अभी भी वो मुझसे आराम करने के लिए कह रहा था। मैं उसका बार बार शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन उसकी अम्मी भी ये कह रही थी कि हमसाए होते किसके लिए हैं, इसलिए शुक्रिया की कोई बात नहीं है। वो लोग जा चुके थे। सकीना मेरे लिए सागुदाना ले आई। अम्मा ने अपने हाथों से मुझे खिलाया। दिल ना चाहने के बावजूद मुझे खाना पड़ा। मेरी अम्मा मुझसे कहने लगी कि कोई टेंशन ली है क्या? घर से तो तुम अच्छे भले गए थे, फिर अचानक से क्या हो गया था? लेकिन मैंने अपने जहन पे बहुत जोर दिया। उसके बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं याद आ रहा था। खैर, तुम आराम करो। शादी में दिन भी बहुत कम है, लेकिन जब तक अपनी सेहत इजाजत नहीं देगी कैसे शादी की तैयारियां करोगे? दिल ऐसे बुझ सा गया था कि अब्बा की रूह किस कदर परेशान होगी कि क्या मैं भी उनके बाद उनकी बेटियों का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा। अम्मा मुझे समझाते हुए कह रही थी, जी अम्मा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने अपने जहन पे एक दफ़ा फिर से जोर डाला, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं करवट बदल कर सो गया। अगली सुबह मैं बहुत जल्द उठ गया और डेरे पर जाने लगा, लेकिन अम्मा ना जाने पूरी रात ही नहीं सोई थी। कहने लगी कि आज कोई ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, आराम करो। उसामा कह रहा था कि वो सब कुछ देख लेगा। मैं बहुत कोशिश के बावजूद भी घर से बाहर न जा सका। सकीना मेरे पास आई और कहने लगी कि सऊद भाई आए थे और कहने लगे कि अम्मी की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं, कोई भी मसला नहीं है, लेकिन ना जाने क्या है।
कि जैसे ही वो घर आती हैं वो पहले जैसी ही हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया है? मैं बहुत हैरान हो रहा था, लेकिन क्या कह सकता था। खामोशी से घर की छत देखने लगा, जो मुसलसल बारिशों की वजह से ऐसे ही हो गई थी जैसे गिरने वाली हो। अल्लाह हमारी इतनी मदद फरमा कि हम लोग ताया से अपना घर वापस ले सकें। बस इन्हीं सोचों में गुम मेरी आंख लग गई। जब मैं उठा तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। महज तबीयत की बहाली के लिए घर से बाहर निकल गया। पूरे गांव में ताई की तबीयत के चर्चे हो रहे थे। मुझसे ना ही रहा गया तो मैं उनकी तरफ चला गया। वो चारपाई पर लेटी हुई थी, लेकिन चेहरे पे पहले से भी कहीं ज़्यादा गुस्से की लकीरें थी। मैंने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो वो तो शायद पहले से ही बहुत गुस्से में बैठी हुई थी, इसीलिए मुझे देखते ही ऊंची आवाज़ में चीखने लगी। बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ पे किसी ने काला जादू कर दिया है। वही फरसूदा बातें। मैं कुछ देर बैठा, लेकिन फिर उठकर घर आ गया, क्योंकि मुझे वहाँ किसी ने भी बैठने के लिए नहीं कहा था। 2 दिन के बाद मेरी बहनों की रुखसती थी। मैं कोई भी बदमज़गी नहीं चाहता था, इसीलिए चुपचाप वहाँ से वापस आ गया। घर जाने के बजाय डेयरी की जानिब चल दिया। उसामा अपने डेरे वाले मुलाजिम के साथ मिलकर चारा काटने में मसरूफ था। उसामा मेरा बचपन का दोस्त था, बिल्कुल भाइयों की मानिंद था। इसलिए मेरे दिल में पहले तो आया कि मैं उससे कुछ बात शेयर कर लूं, लेकिन जितनी भी बात मुझे याद थी उसका कोई सर पैर नहीं था। इसीलिए मैं खामोशी से एक चारपाई बिछाकर बैठ गया। उसामा इधर उधर की बातें करने लगा और कहने लगा कि मैं एक चक्कर सब्जियों में लगा कर आता हूँ। कुछ सब्जियां जो पक गई हैं वो घर ले चलते हैं। मैं चारपाई पर ही लेटा हुआ था कि अचानक ही कुएं में से पानी गिरने की आवाज़ आई। साथ में ही पायल की झनकार भी सुनाई देने लगी। मैंने एकदम से कुएं की जानिब देखा। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी तरफ देख रहा था। मेरे पसीने एक दफ़ा फिर से छूट गए, लेकिन मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैंने बहुत हिम्मत करके पूछ ही लिया। अभी मैं उससे मजीद पूछने लगा था कि उसामा भागता हुआ आया और कहने लगा कि जल्दी से जानवरों को कमरे में करो, बहुत जोर से बारिश होने वाली है, क्योंकि बहुत दूर बहुत शोर है बारिश का और वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आता जा रहा है। साथ वाले गांव में कई कच्चे कोठे गिर गए हैं, माल मवेशी भी पानी में बह गए हैं। ये ना हो कि हमें भी कोई नुकसान पहुंच जाए। हम लोगों ने बहुत जल्दी में जानवरों को कमरे में किया और खुद तेजी से घर की तरफ चल पड़े, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी थी। अम्मा बहुत दुआएं कर रही थी कि इस कच्चे मकान की हिफाजत फरमा दे अल्लाह। पूरी रात न जाने क्यों जिंदगी में पहली दफा हम लोग ऐसे सुकून से सोए कि कभी ना सोए होंगे, कि बारिश की शदीद तर होने के बावजूद छत नहीं टपकी, ना ही दीवारों में से पानी आया। बड़ी हैरत की बात थी। एक दिन रह गया था शादी में, निकाह सादगी से करने का फैसला किया गया था, इसीलिए कुछ खास फिक्र नहीं थी। शाम के वक्त कुछ लोग आए, बहनों को मेहंदी लगाई और फिर अगली सुबह बारात को अच्छा खाना दिया। शाम तक रुखसती कर दी गई। घर भर में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। अम्मा भी उदास सी थी। रात गए हम माँ बेटा बहनों के बारे में बचपन से लेकर अब तक की बातों को कई कई दफा दोहराकर नम आंखों को साफ करते रहे। न जाने कब हम लोग बातें करते करते सो गए। रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई, तकरीबन पूरी रात ही बारिश होती रही। एकदम से घर की छत गिर पड़ी, सिवाय उस कमरे के जिसमें हम लोग सो रहे थे। यानी अल्लाह को हमारी जिंदगी फिलहाल मंजूर थी, इसीलिए उसने ये छत गिरने से बचा ली। छत गिरने की आवाज इस कदर खौफनाक थी कि हम दोनों लरस कर उठ बैठे। अम्मा का तो रो रो कर बुरा हाल था, और मैं ये सोच रहा था कि अब्बा की जमा पूंजी तो सारी की सारी बहनों की शादी पे लग गई थी। अब मैं घर कैसे बनाऊंगा? बेतहाशा मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसी परेशानी में सुबह हो गई। गांव के लोगों को जैसे जैसे पता चला वो अफसोस करने के लिए आ रहे थे। अम्मा के मुताबिक सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, अब तो पास भी कुछ नहीं था। लेकिन इस तरह से बेसरो सवानी के आलम में कैसे खुली छत के नीचे रह सकते हैं? इसलिए उन्होंने मुझसे किसी मिस्त्री मजदूर का पता करने के लिए कहा। महंगाई की वजह से हर चीज़ ही बहुत महंगी हो चुकी थी। बहरहाल काम तो फिर अब करवाना ही था। 2 मजदूर और 2 मिस्त्री लगाए गए कि काम जल्द हो जाएगा। शाम तक वो लोग काम में मसरूफ होते। हम लोग उसी घर में एक कमरे में रहने लगे थे। ताया जी को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो उन्होंने अपने तौर पर काफ़ी जश्न मनाया था। खैर, आज काम का पहला दिन था, इसलिए मुश्किल से ही गारा मट्टी ही मिक्स किया गया था। हम लोग बहुत परेशानी के आलम में बैठे हुए थे। अलग से नवाला नीचे उतारना मुश्किल हो रहा था कि दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। एक औरत सामने खड़ी थी, उसके हाथ में कपड़े का एक छोटा सा थैला भी था। मैं बहुत दूर से आई हूँ, अभी मेरी मंजिल बहुत दूर है, तो क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है?
अम्मा भी ये सब कुछ सुन रही थी। फौरन से कहने लगी कि हारून, इसे अंदर ले आओ। ये अम्मा की शुरू से ही आदत थी कि किसी भी सवाली को खाली हाथ नहीं लौटाया करती थी। मैंने कुछ झिझक के बाद उसे अंदर बुला लिया। वो कमोपेश 22 से 23 बरस की एक लड़की थी जो निहायत परेशानी के आलम में यहाँ तक पहुँच गई थी। अम्मा ने उसे देखते ही कमरे में बुला लिया। कहो बेटी, कौन हो और क्या मसला है? माँ जी, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुसाफिर हूँ, सफ़र लंबा है और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए मुझे खाना खिला दें ताकि मैं मज़ीद सफ़र जारी रख सकूं। अम्मा का दिल तो पहले ही बहुत नरम था, फ़ौरन से मान गई। घर में जो भी बना था उसे पेश कर दिया। वो शुक्रगुजार होकर उसे खाने लगी और साथ ही साथ हमारे घर की खस्ता तरीन हालत को भी देख रही थी। खाना खाने के बाद वो कहने लगी कि अब मैं चलती हूँ। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए अम्मा को फिक्र लाहक होने लगी। उन्होंने इधर उधर देखा और उसे कहा कि अभी यहाँ ही रुक जाओ, आज की रात, कल सुबह होते ही मेरा बेटा हारून तुम्हें बसों के अड्डे तक छोड़ आएगा। वो तो शायद इसी इंतज़ार में थी। ये बात सुनकर फौरन से मान गई। अम्मा और वो इसी कमरे में चारपाइयों पर लेट गईं और मैं डेरे की तरफ निकल गया। मौसम भी अबरालू था, लेकिन शायद बारिश ना हो क्योंकि हवा नहीं चल रही थी। मैंने जानवरों को कमरे में बांध दिया और खुद भी खुले बरामदे में चारपाई बिछा ली, जहां ठंडी हवा के थपेड़े मुझे सुलाने में मदद कर रहे थे। पूरी रात मैं इस कदर सुकून से सोया कि पता ही नहीं चला कि रात कैसे और कहाँ गुजर गई। सुबह भी फजर के वक्त बड़ी मुश्किल से मेरी आंख खुली थी। मैंने दूध दोहने के बाद चारा काटा और उनको खिलाने के बाद दूध लेकर घर की तरफ चल दिया, जहां वो लड़की बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। अभी मैं घर में दाखिल हुआ ही था कि साथ वालों की छोटी बेटी लस्सी लेने के लिए आ गई। वो उस लड़की को बहुत गौर से देख रही थी। लस्सी ले जाने के बाद वो चली गई। अम्मा ने नाश्ता बनाया और साथ ही वहां पर मिस्त्री आ गए। लड़की घर की हालत तो पहले ही देख चुकी थी, इसीलिए चुपचाप नाश्ता करने में मसरूफ हो गई। कुछ देर के बाद अम्मा ने उससे पूछा कि उसने कहाँ जाना है ताकि उसे वहां छोड़ दिया जाए, लेकिन वो कहने लगी कि शाम तक उसका भाई यहाँ से आकर उसे ले जाएगा। मिस्त्री मजदूर अपना काम करने में मगन थे। शाम होने वाली थी। गांव में अक्सर ऐसे भी होता है कि मजदूर लोग अलग सुबह आ जाते हैं और फिर शाम को जल्दी वापस चले जाते हैं। अभी भी वो काम खत्म करने के बाद जा चुके थे। मैं भी डेरे से होकर वापस आ गया था। मगरिब की अजानें हो चुकी थी। मैं घर में ही था कि अचानक ही ताया जी आ गए। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अम्मा घर में नहीं थी, वो साथ वालों के घर गई हुई थी। ताया जी ने आते ही भड़कना शुरू कर दिया था। उनके कहने के मुताबिक ये लड़की कौन है और यहाँ पे क्या कर रही है। गांव के लोग बेशुमार बातें कर रहे हैं। ताया जी, ये एक मजबूर लड़की है, आज इसने यहाँ से चले जाना है, इसलिए फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये रात भर यहाँ रही है। जानते भी हो लोग कितनी बातें बना रहे हैं। ताया जी ये कहते हुए इस लड़की की जाने बढ़े और उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगे। वो लड़की मिन्नत कर रही थी और तकरीबन रोने के करीब थी, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी ताया जी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसे पकड़कर बाहर ले गए। अचानक ही उस लड़की की गिरफ्त ताया जी की बाजू पे इस कदर शदीद हो गई कि ताया जी की चीखें निकल गईं। मैं बहुत परेशान हो गया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो इस कदर नाजुक सी लड़की इस तरह से इतने देवकामत शख्स को इस कदर मजबूती से पकड़ सकती है कि उसकी चीखें ही निकल जाएं। मैं आगे बढ़ा तो मेरी भी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो लड़की तो थी ही नहीं जो कल रात से यहाँ है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर ये सब कैसे हो गया? ताया जी की चीखें अभी तक निकल रही थी। मैं कुछ आगे बढ़ा और लड़की और उसका इंतहाई खौफनाक चेहरा, जिसके खद्दो खाल ही बिगड़ चुके थे, उसके चेहरे पर नए नक्श नहीं थे बल्कि उस पर खून की लकीरें थीं, जिसमें से मुसलसल खून रिस रहा था। मुझे भी एक दफ़ा तो खौफ के मारे झुरझुरी आ गई थी, लेकिन मैं हिम्मत करके आगे बढ़ा। अभी मैं कुछ कहने ही वाला था कि उस लड़की ने एकदम से ताया जी को छत वाले पंखे के साथ लटका दिया। वो टांगे मार मार कर खुद को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे कि ईशा की अजानें होने लगी। जैसे ही अजान शुरू हुई, ताया जी खुद ब खुद ही नीचे आ गए और वो लड़की बड़े आराम से अपने असली रूप में आकर चारपाई पर लेटी हुई थी। ताया जी फिर वहां एक पल भी नहीं रुके और भागते हुए गिरते पड़ते अपने घर को चल दिए। मैं शदीद खौफजदा था, लेकिन कहने की हिम्मत करते हुए उसके करीब गया। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है, लेकिन प्लीज बस इतना बता दो कि तुम हमसे क्या चाहती हो। मेरी बात के जवाब में वो कहने लगी कि बस कल तक तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। खैर, अम्मा आ गई थी। उन्हें कुछ भी बताने से उस लड़की ने मना किया था। रात भर मजीद इंतजार के बाद भी वो लड़की हमारे यहाँ ही रही। उसका भाई नहीं आया।
अगले दिन अलग सुबह उसका भाई आ गया, लेकिन वो कहने लगा कि मैं इस घर की तामीर में हिस्सा लूंगा। बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं रुका। बाकी मजदूरों की मानिंद वो भी चौकस अंदाज में निहायत तेजी से काम करने में मगन था। अम्मा के साथ साथ सारे गांव वाले बहुत हैरान थे कि ये सब क्या हो रहा है। जब से उस लड़की का भाई आया हुआ था, उस लड़की की भी कुछ खबर नहीं थी। मैंने उसे इधर उधर बहुत तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। खैर, मजदूरों के पास कुछ देर ठहरने के बाद मैं डेरे पर चला गया। दोपहर हो चली थी। सर्दी के दिन तकरीबन शुरू हो ही चुके थे, लेकिन अभी शदीद धूप में बैठना ठीक नहीं लगता था। मैंने थोड़ी सी छांव में चारपाई कर दी और बिला वजह इधर उधर देखने लगा कि अचानक ही कुएं के मुंडेर पर एक सुरीली सी आवाज के साथ बांसुरी बजाते हुए एक लड़की पायल की झनकार के साथ कुछ निहायत मीठा गाने में मसरूफ थी। ना जाने मेरे दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में कर लिया हो, इसीलिए मैं उसकी तरफ कान लगाए निहायत मगन अंदाज में सुनने में मसरूफ था। मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत देर गुजर चुकी थी, शायद अभी भी मैं होशो हवास में ना आता अगर उसामा की कॉल ना आई होती तो। खाला बुला रही हैं, जल्दी घर आओ। उसकी आवाज में कुछ घबराहट थी, इसलिए मैं जल्दी से भागते हुए घर की तरफ चल दिया। उस लड़की की सुरीली आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। जब मैं घर पहुंचा तो समझा कि शायद किसी और के घर के सामने खड़ा हूं, लेकिन अम्मा को हैरत का मुजस्समा बने देखा तो बहुत ही हैरत हुई, क्योंकि वो मुझे इशारों से समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये ही हमारा घर है, किसी और का नहीं। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि पूरा घर ही मुकम्मल बना हुआ था, बिना किसी कमी पेशी के। ताया जी भी देखने के लिए आए थे, लेकिन मुंह से बोले कुछ भी नहीं, बस एक नजर डालकर चले गए थे। लेकिन इस तरह का घर इतनी जल्दी कैसे बन सकता है, मैं बहुत हैरान हो रहा था। पक्की छत, दीवारें भी पक्की, कहीं भी मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था। मिस्त्री मजदूर भी हैरान हो रहे थे, लेकिन एक तरह से वो अपनी तारीफ ही कर रहे थे कि ये सब कुछ हमने इतनी जल्दी कर लिया है। मैं अम्मा के पास गया। वो लड़का जो शाम को यहाँ आया था, वो अब कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये बात तो मैं समझ ही गया था कि ये सब कुछ उसने बनाया है और वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि कोई और ही मखलूक है। लेकिन मेरे साथ ऐसी हमदर्दी क्यों हो रही थी, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। कुछ देर बाद सारे मजदूर और मिस्त्रियों को मिठाई के साथ चाय दी गई। उन्हें उनकी मजदूरी दी गई, लेकिन वो वाकई उन सब से बढ़कर कुछ लेने के हकदार थे। सब लोग जा चुके थे। मैं और अम्मा वर्ता हैरत में डूबे हुए थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि हमारे अंदाजे के मुताबिक तो इस घर को बनने में कम से कम 4 से 6 माह लगने थे। फिर ये सब कैसे हो गया। शाम तक हम लोग घर में सामान सेट कर रहे थे। रात को थक हार कर सो गए। रात के शायद दूसरे पहर या तीसरे पहर वही मखसूस सी पायल की झनकार सुनाई दे रही थी। मेरी आंख उन मीठे सुरों की वजह से एकदम से खुल गई। मैं बहुत गहरी नींद सोया हुआ था, इसीलिए जागने और फिर जागकर कुछ समझने में कुछ वक्त लग गया। कमरे में बनी हुई खिड़की की जगह खाली थी, वहां पर अभी खिड़की लगाना बाकी था। उसमें वही लड़की बैठी हुई थी। मखसूस और मदहोश कर देने वाली आवाज के साथ मैं एकदम से उठकर बैठ गया। जैसे ही मैंने उठकर उस खिड़की की तरफ चलना शुरू कर दिया, वो लड़की भी खिड़की के दूसरी तरफ कूद गई, लेकिन उसके पैरों के निशान पे चलते हुए खिड़की के पार जाने को बिल्कुल तैयार था। मैं उस तरफ कूद गया और उन निशानों पर चलते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो कभी आहिस्ता हो जाती, कभी तेज चलना शुरू हो जाती, लेकिन मैं उसके पीछे ही चलता जा रहा था। ना जाने कितनी देर हो गई थी मुझे चलते हुए। जब वो डेरे पर पहुंच गई और मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि डेरे पे पहुंचने के लिए इतनी देर तो नहीं लगती थी। लेकिन ना जाने वो खूबसूरत लड़की किन किन रास्तों से होकर आई थी कि चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ गए। वहां पहुंचने के बाद वो लड़की उसी कुएं के अंदर कूद गई और मेरी अकल इस कदर माऊफ हो चुकी थी कि मैं भी उसके अंदर ही कूद गया। ये भी नहीं सोचा कि कहीं मुझे कोई नुकसान ही न पहुंच जाए, और हैरत की बात तो ये थी कि मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं पहुंची थी। मैं बड़े आराम से उसी पानी की तह पर चल रहा था। वो लड़की भी गोल गोल घूम रही थी और मैं भी एक दायरे की सूरत में गोल गोल घूमने लगा। फिर पानी में शगाफ पड़ गया और वो लड़की उस शगाफ के जरिए दूसरी तरफ निकल गई। मैंने भी उसी की पैरवी की और उसके पीछे पीछे चलने लगा। आगे एक निहायत खूबसूरत वादी थी। उस वादी के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा सब्जा था, लेकिन एक तरफ आग का निहायत बड़ा सा अलाव था। उसी अलाव में ताया जी लटक रहे थे। उनका वजूद झुलस रहा था और वो दोनों हाथों से मुआफिया मांग रहे थे। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगा तो वो लड़की मेरे सामने आ गई। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने उस लड़की को कहाँ देखा है। मेरे जहन में नहीं आ रहा था।
फिर वो बांसुरी बजाने लगी और मैं मदहोश। वो उस वादी के बिल्कुल दरमियान में बैठ गई और मैं भी उसके सामने बैठ गया। फिर वहां पे वो लड़का भी आ गया जिसने घर बनाने में मुकम्मल मदद की थी, वो भी वहीं पर ही आ गया। फिर वो मेरे सामने बैठी हुई लड़की उसी लड़की की शक्ल में बदल गई जो हमारे घर में दो रातें रही थी। उसकी शक्ल बदलते हुए मुख्तलिफ जाविये बदल रही थी। एकदम से मुझे शदीद घबराहट होने लगी। फिर जैसे मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया और मैं वहीं बैठे बैठे अकड़ने लगा। लेकिन मैं अब की दफ़ा बेहोश नहीं हुआ, बिल्कुल होश में ही रहा। कौन हो तुम लोग, और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। हम जिन्नात हैं और तुम्हारे एहसानात उतारने के लिए यहाँ तुम्हें लाए हैं। तुम्हारे ताया को सबक भी सिखाना था, इसीलिए यहाँ तक आए हैं। कौन सा एहसान? मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैंने मुश्किल से अल्फाज अदा किए। तुमने अपनी बाइक से एक दफ़ा मुझे टक्कर मारी थी, लेकिन फिर तुम ही मुझे अस्पताल में ले गए थे, बस वही एहसान। फिर मैं भूखी थी क्योंकि हमारे मुखालिफ जन्नात जो कि इंसानों की बस्तियों को आग लगा देते हैं, उनको मैंने सबक सिखाया था। फिर उन्होंने मुझे सज़ा के तौर पर जन्नाती वादी से निकाल दिया था। मेरी ताकत भी ख़त्म हो रही थी, इसीलिए मुझे किसी इंसान के घर की तलाश थी जो बहुत ही मेहरबान हो। बस मैं बहुत घूमी, बहुत सारे लोगों के दरवाज़ों पर दस्तक दी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। लेकिन तुम लोगों ने की। बस मैं यहाँ ही आई, खूब खाया पिया और फिर मैंने ताकत हासिल करने के बाद अपने भाई को भी यहाँ बुला लिया। बदले के तौर पर तुम्हारे घर की तामीर की, क्योंकि जैसे कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से कुछ जिन्नात भी बहुत ही अच्छे होते हैं। हम भी इन्हीं में शामिल हैं। हम यहाँ इस कुएं में रहते हैं, ये पानी ही हमारी ज़िंदगी है। तुमने मुझे यहाँ बहुत दफ़ा देखा भी था, लेकिन यहाँ से निकाला नहीं। बस मैं समझ गई कि तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। ये तुम्हारा ताया तुम्हारे साथ जो कुछ भी करता रहा है, इसे अब सही से सबक हासिल हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ताया जी बुरी तरह से बिलक रहे थे। उन्हें नीचे उतार दो, हमारा पक्का मकान बन गया है, हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए। वो मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। मुझे लगा शायद उससे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं दंग रह गया। जब मैंने उसे देखा तो वो किसी और नज़र से ही देख रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे ताया को एक शर्त पे छोड़ दूंगी कि तुम मुझसे मिलने के लिए रोज़ यहाँ आया करोगे, या मैं तुमसे तुम्हारे डेरे पर मिला करूंगी। लेकिन हम मिलकर क्या? मैंने बहुत डरते हुए पूछा, क्योंकि उसकी खूंखार नज़रें मुझे मज़ीद खौफज़दा कर रही थीं। ठीक है, मैं तुमसे रोज़ मिला करूंगा। उसने ताया जी को मेरे कहने पर छोड़ दिया, जो एक सेकंड में वहाँ से गायब हो गए और मैं और वो जिनजादी वादी में घूमने फिरने लगे। वो बहुत ही अच्छी जिनजादी थी। बहुत सारे दिन मिलने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं तो उससे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है कि पता ही नहीं चलता कि कब कैसे किससे कहाँ हो जाती है। मुझे उससे मिलते हुए 2 साल गुजर गए थे। वो बज़िद थी कि मैं उससे शादी कर लूँ, लेकिन मैंने उसे समझाया कि जन्नात उन इंसानों की शादियाँ नहीं होती। मेरे बार बार समझाने पे वो समझ गई थी। मेरी शादी दूसरी खाला की बेटी के साथ हो गई। अल्लाह ने शादी के 2 साल बाद मुझे निहायत खूबसूरत बेटी दी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसमें सारी शबी उस जिनजादी की आती जा रही थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।